we should revise. Like in method 1 where provision for depreciation account is not maintained, when asset is purchased, what is the journal entry? Machinery account debit to bank account. फिर हम उस पर depreciation provide करते हैं, तो उसकी क्या एंट्री होती है? depreciation account debit to machine account, right? उसके बाद depreciation को P&L में ट्रांसफर करते हैं. Depreciation that is expense is transferred to P&L account. So the journal entry will be P&L account debited 10 to depreciation 10. Got it? And if when an asset is purchased where provision for depreciation account is maintained, what will be the entry? Machinery account debit to bank account. And when we provide depreciation on that asset, depreciation account debited to provision for depreciation 10. And at the end of the year, we will transfer this depreciation to P&L account, and for that the journal entry will be P&L account debited to depreciation account. Now we will understand how to prepare ledger from these journal entries. Here is the question. On 1st April 2024, a machine purchased for rupees 3 lakh. Depreciation is provided at 10% per annum on WDV basis. Prepare machine account and depreciation account for the year ended 31st March 2025 and 2026. Now we know how to prepare ledger accounts, right? We will prepare machine account first. The first entry will be for machine purchased 3 lakh on 1st April 2024. So the journal entry will be machine account debited to bank account 3 lakh. तो हम मशीन अकाउंट को डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 लाख कब हमने परचेज करी है मशीनरी? 1st April 2024. करेक्ट. उसके बाद हम क्या करते हैं? मशीनरी पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं. कब? एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 2025. डेप्रिसिएशन कितना देना है? 10% पर एनम. किस बेसिस पे? WDV बेसिस पे. WDV किस पे कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू पे कि कॉस्ट पे? बुक वैल्यू पे. तो मेरी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 3 लाख. तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10% ऑफ 3 लाख, दैट इज 30,000 रुपीज फॉर 1 ईयर. तो हम डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट. तो मशीन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 31st March 2025 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000. एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट 31st March 2025 टू मशीनरी अकाउंट 30,000. उसके बाद हम क्या करते थे? डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते थे. उसकी एंट्री होती थी P&L अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट अब हमारा क्या होगा? क्रेडिट ऑन 31st March 2025 बाय P&L अकाउंट 30,000. अब हम क्या करेंगे? सारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे. तो इसका टोटल आ रहा है डेबिट का 30,000, क्रेडिट का टोटल 30,000. नाउ इन मशीनरी अकाउंट हियर टोटल इज 3 lakh. द टोटल ऑफ क्रेडिट शुड बी ऑल्सो 3 lakh. अब जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2,70,000 रुपीज, उसको हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD 31st March 2025 को. अब हम नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे 1st April 2025. उस दिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ऑन 1st April 2025 टू बैलेंस BD 2,70,000. अब हमने 2025 से 2026 का जो हमारा ईयर है उसमें हमने कोई मशीनरी बाय नहीं करी, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री नहीं होगी. अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर.
तो 31 मार्च 2026 में हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 10%। किस पे देंगे? बुक वैल्यू पे, क्योंकि हम WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। तो 2,70,000 पर 10% विल बी 27,000 rupees and depreciation account will be debited by 27,000 rupees। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2026। डेप्रिसिएशन को PNL में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होती थी? PNL अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय PNL अकाउंट 31 मार्च 2026 27,000। अब हमें कुछ और नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? सारे अकाउंट्स को बैलेंस करके क्लोज कर देंगे। 27,000 and here also it is 27,000 rupees. Okay, now we will close machine account as well. 31 March 2026 by balance CD. Here the total is 2,70,000. So the total of credit side should also be 2,70,000. So the balancing figure will be the 2,43,000. This is how you prepare machine account and depreciation account. Now this is example 2. On 1st July 2024, a machine purchased for 2 lakh rupees. Depreciation is 10% per annum on SLM basis. Prepare machine account, provision for depreciation account and depreciation account for the year ended 31st March 2025, 2026, 2027. So हमें इस क्वेश्चन में 3 साल का अकाउंट बनाने हैं। किस किस के? मशीन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एंड डेप्रिसिएशन का। तो मैं आपको एक बार टाइमलाइन से सिखा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जुलाई 2024 को हमने एक मशीन बाय करी है 2 लाख रुपी, जिस पे हमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? 10% SLM बेसिस पे। हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। अब हमें बनाना क्या क्या? मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने सालों का बनाना है? 31 मार्च 2025, 2026 एंड 2027। 1 अप्रैल 2024 से ईयर स्टार्ट हुआ होगा, वो एंड कब होगा? 31 मार्च 2025। इसका मतलब ये एंट्री पहले साल में ही कहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 31 मार्च 2025। ये ईयर अब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026। ईयर स्टार्ट होगा, ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2027। हमें यहाँ तक के अकाउंट्स बनाने, तो हम यहाँ तक का ही सिर्फ डेटा देखेंगे। अब हम लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? मशीन अकाउंट। सपोज हमें यहाँ से हमने क्या करा है? चलना यहाँ से हमने स्टार्ट करा है, ठीक है। हम कहाँ पहुँच गए? 1 जुलाई 2024। उस दिन हम क्या कर रहे हैं? मशीनरी परचेज कर रहे हैं। मशीनरी परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो हम इसको पोस्ट क्या करेंगे? मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऑन 1 जुलाई 2024 टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज। हमने यहाँ की एंट्री पास कर ली। अब हम यहाँ से चलते 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 कहाँ पहुंचे? ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि यहाँ तक डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10% पर एनम ऑन किस पे देना है? SLM बेसिस। SLM किस पे कैलकुलेट करती है? कॉस्ट पे। तो 10% ऑफ 2 लाख रुपीज विल बी 20,000। बट ये कितने टाइम का है? 12 मंथ्स। ने मशीनरी को यूज कितने महीने करा है? तो हम काउंट करेंगे तो कितना हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 9 by 12।
इज इक्वल्स टू 15,000 रुपीज। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हम डेप्रिसिएशन दोनों मेथड में, चाहे हम किसी भी मेथड से लगाए, उसमें लिखा हुआ था कि हम कैसे लगाते हैं, ऑन टाइम बेसिस। तो हम टाइम के फैक्टर को कंसिडर करते हैं, जितने महीने मशीन यूज करोगे उतने महीने का डेप्रिसिएशन दोगे। यहाँ पर हमने 9 मंथ्स मशीन यूज करी है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का दिया है। अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि इसमें हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो ये कौन सा मेथड हुआ, सेकंड। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000 रुपीज। ऑन 31st March 2025 to provision for depreciation account 15,000 rupees and provision for depreciation account will be credited on 31st March 2025 by depreciation account 15,000 rupees. Now the third entry is कि हम डेप्रिसिएशन को कहाँ करते हैं, ट्रांसफर पीएनएल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होती है उसकी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31st March 2025 बाय पीएनएल अकाउंट 15,000। ये ईयर हो गया अब हमारा खत्म। अब हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो इसका टोटल कितना आ रहा है 15,000 और क्रेडिट का भी टोटल कितना आ रहा है 15,000। तो इसकी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बची है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बैलेंसिंग फिगर बची है कितनी, क्रेडिट का टोटल है 15,000, सो डेबिट का भी टोटल कितना होना चाहिए 15,000। तो मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 15,000। 31st March 2025 टू बैलेंस CD, और ये अगले साल जाकर क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1st April 2025 बाय बैलेंस BD 15,000 रुपीज। मशीन अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है 2 लाख, तो क्रेडिट का भी टोटल कितना आना चाहिए 2 लाख। तो ऑन 31st March 2025 बाय बैलेंस CD 2 लाख रुपीज, जो अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 2 लाख रुपीज ऑन 1st April 2025। अब हमने एंट्रीज कहाँ तक पास करी है, यहाँ तक। अब हमारे यहाँ से न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, हमने सबके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लिए। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई मशीनरी परचेज नहीं करी है, तो हम इस साल के एंड में क्या करेंगे, दोबारा से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है, 10% ऑन SLM बेसिस। 10% SLM किस पे लगाते हैं, मतलब कॉस्ट पे। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है हमारी 2 लाख रुपीज। अब यहाँ पर हमने एसेट को पूरे 12 मंथ्स के लिए यूज करा है, तो हम पूरे 12 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो होगा 20,000 रुपीज। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में भी यही सेम चीज होगी, 20,000 का ही डेप्रिसिएशन यूज होगा, क्योंकि हमने एक साल पूरा मशीनरी यूज करी है। तो इस साल के एंड में भी हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा 20,000। अब हम क्या करेंगे, एंट्रीज पोस्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो हेयर ऑन 31st March 2026 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 rupees, and in depreciation account it will be 31st March 2026 to provision for depreciation account will be 20,000 rupees. लास्ट एंट्री क्या होती है, हम डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31st March 2026 बाय पीएनएल अकाउंट 20,000 रुपीज। उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती। अब क्या करने हैं, हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। टोटल कितना है 20, क्रेडिट का टोटल कितना है 20, तो इसमें तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बची है डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट का टोटल कितना है
35,000 रुपीज। तो इधर का भी टोटल कितना होना चाहिए? 35,000 रुपीज। तो मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी हो गई? 35,000 रुपीज। कब आएगा ये? एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2026 टू बैलेंस CD, जो अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD 35,000 रुपीज। हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या आएगा? 2 लाख टोटल। क्रेडिट का भी टोटल कितना आना चाहिए? 2 लाख। तो यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी बचनी चाहिए? 2 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च 2026 बाय बैलेंस CD। गॉट इट? जो अगले साल जाकर क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2026 टू बैलेंस BD 2 लाख। अब हम कौन से फाइनेंशियल ईयर पहुंच गए हैं? 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। तो इस ईयर में हमने कोई भी मशीनरी परचेज नहीं करी है, तो हम सीधा कहाँ पहुंच गए? इस द एंड ऑफ द ईयर। तो हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को पोस्ट करेंगे ऑन 31 मार्च 2027 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या डालेंगे? ऑन 31 मार्च 2027 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। लास्ट एंट्री क्या होती है? हम इसको ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ऑन 31 मार्च 2027 बाय P&L अकाउंट 20,000। अब कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है? सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। 20,000 इधर का टोटल आएगा 20,000 रुपीज। प्रोविजन का टोटल करेंगे यहाँ 55,000। तो यहाँ भी टोटल कितना आना चाहिए? 55,000। तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर कितनी है? 55,000 रुपीज टू बैलेंस CD 31 मार्च 2027। करेक्ट? अब हम क्या करेंगे? मशीन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 2 लाख। क्रेडिट का टोटल भी कितना आना चाहिए? 2 लाख बाय बैलेंस CD 2 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च 2027। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। हमारी बुक वैल्यू एसेट की कभी कम हो ही नहीं रही है, क्योंकि हम इसमें क्या क्रिएट कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस मशीन पे जो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो हम एक गुल्लक बनाई है, हमने पिगी बैंक बनाया जिसमें हम वो डेप्रिसिएशन हर साल ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने 2024 से 2025 में कितना डेप्रिसिएशन ऐड करा? 15,000। फिर उसके अगले साल मैंने और ऐड कितना करा? 20। 15,000 पहले का था, 20 मैंने और डाल दिया। तो मेरा 31 मार्च 2026 तक ना उसकी मशीन की वैल्यू मेरे हिसाब से 35,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। नेक्स्ट ईयर मैंने उस मशीनरी पे 20,000 और डेप्रिसिएशन डाला, तो मेरी मशीनरी पे इस डेट तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 55,000 रुपए। समझ आया? और डेप्रिसिएशन हर साल हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करके P&L से राइट ऑफ कर देते हैं। गॉट इट?